Good afternoon to all students. This side Lata Mangesh Bhati, Assistant Professor of Metro College of Health Science and Research. Today's topic is cultivation, collection, and processing of raw crude drugs. Firstly, cultivation. Subject pharmacognosy and phytochemistry in B.Pharm second year. So cultivation improved produce improved quality of plants in it help in selecting the species variety and hybrids. The desired phytoconstituent due to control environmental better better plant product is obtained, ensure quality and purity of medicinal plant. So cultivation select the species variety and hybrid help, then better plant product is obtained due to control environmental growth and the ensure the quality and purity of medicinal plant. So मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, किस मेथड से हम प्लांट प्रोपोगेट करते हैं? टू टाइप्स के प्रोपोगेशन होते हैं देन जिससे हम प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं. सेक्सुअल मेथड है, एसेक्सुअल मेथड. मेडिसिनल प्लांट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय टू यूजुअल मेथड्स एज एप्लीकेबल टू नॉन मेडिसिनल प्लांट्स और क्रॉप्स. These methods are referred as sexual methods and asexual method. Each of these methods has certain advantages and also disadvantages. So, firstly, sexual method, the process of sexual propagation. First word is pollination. In sexual propagation, transfer of pollen grains from anther to stigma. That is called pollination. Then, after pollination, fertilization. Fusion of male and female gamete takes place, resulting in formation of the zygote. Then, seedling multiplication of plants by using seed is called seed propagation or seedlings. Then dormancy, it is a term used to describe a seed that will not germinate because of any condition associated either with the seed itself or with existing environmental factors such as the temperature and moisture. In environmental factor, temperature and moisture, yeah, seed itself destruction or any other condition, seeds that will not germinate. Then rest period, some seed will not germinate immediately after harvest even if conditions are favorable. This failure to germinate due to the physiological condition, this is said to seeds are in the rest period. That seeds are rest periods due to the physiological condition, germinate will not germinate immediate after harvest, and this process is failure. So seed viability and longevity. Viability means presence of life in the seed. Longevity refers to the length of time period that seeds will retain their viability. Some seeds are short-lived. Example: citrus. Citrus fruits are the short-lived seeds. Then pre-germination after seed treatment to improve germination rate. जर्मिनेशन रेट को इम्प्रूव करने के लिए क्या हुआ, सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्री जर्मिनेशन सीड ट्रीटमेंट. ठीक है. सो फर्स्टली सीड्स को जर्मिनेट करने से पहले क्या है, उसको क्या है, प्री जर्मिनेशन सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है. फर्स्ट जैसे एग्जांपल केमिकल में ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन होगा. ये जो द पर्पस इज टू मॉडिफाइड हार्ड or important or impermeable seed covering, generally soaking seed in concentrated sulfuric acid is an effective period. सबसे पहले क्या करेंगे, 1 नाइट 24 आवर या 72 आवर पहले क्या करेंगे, सीड जर्मिनेट करने से पहले क्या करेंगे, उसको सोक करके रखेंगे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में. ठीक है. ये जो टाइम होता है ट्रीटमेंट का वो डिपेंड करता है 10 मिनट्स 2 to 6 आवर जो है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज के अकॉर्डिंग वो है कि कितने टाइम तक हम उसको सोक करके रख सकते हैं. तो जो टाइम है वो वेरी कर जाता है, 10 मिनट से 6 घंटे के बीच में वो स्पीसीज के अकॉर्डिंग हम उसको सोक करके रखते हैं. समटाइम फाइटोहार्मोन्स लाइक जिब्रेलिन्स, इथाइलिन्स, cytokinins are also used. Gibberellins, ethylene, cytokinins, these are the plant hormones. Other chemicals like potassium nitrate, thiourea, sodium hypochlorite also used for the treatment of pre-germination seed treatment. Then second method is mechanical scarification. Seeds of few species with impermeable seed coat, that is hard seed coat, can be rendered impermeable
How grosses the germination is greatly improved by mechanical specification. Taking care the seed should be injured, not be injured heavily. This can be achieved by placing the seed between two sandpaper. One is stationary and other revolving, passing seed through the machine that stretch the surface, then filling and notching the make the seed coat permeable to water. क्या होता है कि सीड कोट जो होती है वो इतनी हार्ड होती है जिससे क्या होता है वो परमेबल नहीं हो पाता, ठीक है। सो कुछ जो स्पीसीज होती है वो इम्परमेबल सीड कोट की होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें क्या सबसे पहले क्या करेंगे, सीड्स को लेंगे, उसको दो सैंड पेपर डोजेस के बीच में रखेंगे, एक स्टेशन होगा अदर रिवॉल्विंग होगा, देन उसको सीड को पास कराएंगे मशीन से सरफेस पर, देन उसके बाद फिल करेंगे एंड नोटिंग द सीड कोट परमेबल टू वाटर। दो में थर्ड मेथड सीडलिंग, पहले क्या हुआ कि सोक करके रख लिया, देन सीड कोट अगर इम्परमेबल है तो उसको हार्ड सीड कोट को देन मैकेनिकल मेथड से कर दिया, देन सीडलिंग। उसके बाद बॉइल्ड वाटर ट्रीटमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी सीड है उस पर उसमें बॉइलिंग वाटर डालेंगे उसमें, देन डालने के बाद बॉईल हो जाएगा, देन कूल करेंगे, कूल करने के बाद उसको जो भी हार्ड सील्ड सेल है वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर अबाउट 12 आवर के लिए प्रोसेस चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल है कॉफी, देन सोकिंग वाटर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें द पर्पस ऑफ सोकिंग सीड वाटर में क्या करेंगे, जो हार्ड सीड कोट है उसको मॉडिफाई हो जाता है, तो टू रिमूव इनहिबिटर्स टू सॉफ्टन सीड एंड रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जो टाइम ऑफ जर्मिनेशन है उसका टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा। द टाइम ऑफ सोकिंग सीड इन कोल्ड वाटर डिपेंड अपॉन द हार्डनेस ऑफ सीड कोट, जो टाइम होता है सोकिंग सीड का वाटर में वो डिपेंड करता है कि जो सीड कोट है उसके हार्डनेस के ऊपर। एग्जांपल बीन्स, देन मॉइस्ट सीलिंग करेंगे, मोस्ट ऑफ सीड ऑफ मेनी वुडी ट्रीज या shrubs are exposed to low temperature to bring about prompt and uniform germination. Germination rate measured by rolled towel test and excised embryo test. इन रोल्ड टॉवल टेस्ट में क्या करेंगे, टॉवल लेंगे, देन उसका सीड रखेंगे, देन दोनों तरफ से मॉइस्ट होगा तो उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद वो ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। सो क्या होगा, सीड जर्मिनेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रोल्ड टॉवल टेस्ट। एडवांटेज क्या है, सिंपलेस्ट मेथड है, इजीएस्ट है, मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस है। सम प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेबल एंड फ्रूट स्पीसीज कैन प्रोपोगेट ओनली थ्रू सेक्सुअल प्रोपोगेशन। एग्जांपल मैरीगोल्ड, पपाया, टोमेटो। ये क्या है, ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही जर्मिनेट होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं। देन दिस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन बेटर क्रॉप स्पीसीज दैट आर स्ट्रॉन्गर, डिसीज रेजिस्टेंट एंड हैव लॉन्ग टर्म लाइफ स्पैन। जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन से होता है उसमें क्या होगा कि वो जो बेटर क्रॉप मिलेगी, स्ट्रॉन्ग होगी, डिसीज रेजिस्टेंस होगी, और उसकी जो लाइफ स्पेन है, इनकी जो जीवन है, सर्वाइवल है, वो भी बहुत लॉन्ग टर्म का होगा, ठीक है। देन वायरल ट्रांसमिशन जो है वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं इस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन से। ये जो ओनली प्रोपोगेशन है जिसमें क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग हैव जेनेटिक वेरिएशन, जिसमें क्या होता है, जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें वेरिएशन आता है, exhibits diversity of character from the plant parent crop. This genetic variation is responsible for continuous evolution. कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग बेटर एंड बेटर ऑफस्प्रिंग, जिससे बेटर क्रॉप से बेटर क्रॉप हमें मिलती है। इजी स्टोरेज हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सीड्स को। तो ये क्या है, इसके एडवांटेजेस है। देन डिसएडवांटेजेस, पहले सीड जो है वो भी लॉन्ग टर्म के इनटू मैच्योर प्लांट, एक दो अगर हम सीड से किसी भी प्लांट को जर्मिनेट कराएंगे तो वो मैच्योर प्लांट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो और ये बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल बिटवीन द सोइंग एंड फ्लावरिंग इज लॉन्गर, सो करने में और फ्लावरिंग का टाइम भी बहुत ज्यादा लंबा होगा। सीडलिंग प्रोपोगेट थ्रू सेक्सुअल प्रोपोगेशन आर अनलाइकली टू हैव सेम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक एज दैट द पेरेंट प्लांट। सीडलिंग जो प्रोपोगेट जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन में जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम जेनेटिक करेक्टर जो होते हैं पेरेंट प्लांट्स के, वो कुछ ज्यादा वो नहीं करते, अनलाइकली ज्यादा मैच नहीं करते। सम प्लांट स्पीसीज डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स थ्रू सेक्सुअल प्रोपोगेशन।
कुछ प्लांट स्पीसीज जो है वो वायबल सीड प्रोड्यूस नहीं करते सेक्सुअल प्रोपगेशन से, और जो क्या होते हैं अनसूटेबल होते हैं। देन प्लांट्स दैट डू नॉट हैव सीड कांट प्रोपगेट थ्रू दिस प्रोसेस। अगर आपके पास सीड नहीं है तो वो प्लांट आप ग्रो कर ही नहीं सकते जो सेक्सुअल प्रोपगेशन से। दे आर द मैनी फैक्टर जो अफेक्ट करता है वायबिलिटी ऑफ सीड्स को, जैसे मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर, लाइट। तो ये जो फैक्टर है ये अफेक्ट करते हैं वायबिलिटी ऑफ द सीड्स। देन मेथड ऑफ प्रोपगेशन, दूसरा मेथड है एसेक्सुअल प्रोपगेशन। ठीक है, वो सेक्सुअल से, तो एसेक्सुअल है कि प्लांट का किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट लेके हम एक नया प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी डिफाइंड एज द regeneration of the or formation of new individual from any vegetative part of the plant body। प्लांट का कोई भी पार्ट लेके दूसरा एक पूरा प्लांट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। द मेथड ऑफ वेजिटेटिव, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। इससे क्या होता है, एक प्लांट से बॉडी से एक पार्ट को सेपरेट करते हैं, उससे एक न्यू प्लांट डेवलप होता है। ठीक है, जैसे वेजिटेटिव प्लांट पार्ट बल्ब लेंगे एलियम का, देन पोटैटो का ट्यूबर से, वेलेरियन का ऑफसेट से, जिंजर हल्दी जो है वो राइजोम से, एस्पेरेगस जो है वो रूट से, कॉल्चिकम जो है कॉर्न से एंड पेपरमिंट जो है रूनर से हम पूरे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। जो इसके कुछ मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी प्लांट को ग्रो करने से पहले कट करेंगे उसका पार्ट। ठीक है, तो एक पहले वो पार्ट से कट करेंगे। दीज आर द पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे रूट, स्टेम, लीफ लेंगे। इफ ग्रोन अंडर सुटेबल कंडीशन डेवलप न्यू प्लांट, अगर एक उसको सुटेबल कंडीशन दी जाए तो वो एक न्यू प्लांट डेवलप कर सकता है। स्टेम कटिंग आर जनरली यूज्ड टू ऑब्टेन न्यू प्लांट। सबसे पहले स्टेम कटिंग से स्टेम कट करके एक न्यू प्लांट हम ऑब्टेन न्यू प्लांट। एग्जांपल शुगर केन रोज, इसके स्टेम से पूरा शुगर केन का या रोज का प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, देन लेयरिंग, कट कर लिया, लेयरिंग करेंगे। रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम while it is still attached to the parent plant. This part of stem is later detached from the parent plant and grown into a new plant। ठीक है, सबसे पहले रूट या स्टेम जो भी है वो अटैच होती है अपने पेरेंट प्लांट से, तो सबसे पेरेंट प्लांट से तो क्या करेंगे, डिटैच करेंगे, उसको हटाएंगे पेरेंट प्लांट से और एक न्यू प्लांट के लिए ग्रो करा देंगे। एग्जाम्पल जैस्मीन प्लांट। देन ग्राफ्टिंग, न्यू वैरायटी इज प्रोड्यूस बाय जॉइनिंग पार्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। यानी कि दो डिफरेंट प्लांट से हमने क्या किया, दो डिफरेंट प्लांट से उसके पार्ट लिया और एक न्यू वैरायटी जो है डेवलप कर दी। द रूटेड शूट ऑफ द वन प्लांट कॉल्ड स्टॉक एंड इज जॉइंड विद द पीस ऑफ शूट इज अनदर प्लांट इज सीजन। यानी कि एक प्लांट का हमने रूट पार्ट लिया, उसको स्टॉक बोलेंगे, और उसको ज्वाइन कर दिया दूसरे शूट पार्ट में, दूसरे प्लांट के शूट पार्ट के पीस लेके दोनों को, रूट और शूट को, रूट एक प्लांट से लिया, शूट दूसरे प्लांट से लिया, दोनों को एक साथ हमने ग्रो करा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग। यानी कि दो डिफरेंट प्लांट से एक जो है न्यू वैरायटी बनाई प्लांट की। ठीक है, वो ग्रो करा दी, रोज, सीट्रस, रूबर एक्सेट्रा। देन एडवांटेजेस क्या है, as a resultant species formed through the asexual process are genetically identical, useful trait can be preserved among them। ठीक है, एक तो जो एक सेक्सुअल प्रोसेस जो होते हैं वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं, और जो है वो यूजफुल जो ट्रेट है उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सेम एज द पेरेंट कॉपी होती है। ठीक है, asexual propagation allow propagation of crop that do not possess seed or those which are not possible to grow from the seed। ये उसके लिए कर सकते हैं हम एक एक्सेल जो सीड से ग्रो नहीं होते प्लांट, और हो भी होते नहीं है, हो भी नहीं सकते, उसके लिए इस एक्सेल प्रोपगेशन करते हैं। लाइक जैस्मीन, शुगर के, इनके कोई सीड्स नहीं है, ये सीड से ग्रो नहीं होते, तो इनके पार्ट से ही पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। पोटैटो, बनाना, प्लांट ग्रोन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन बियर फ्रूट्स अर्ली। In this type, only a single parent is required, and thus it eliminates the need for propagation mechanisms such as the pollination, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सेट्रा। सेक्सुअल में क्या था कि वो उसमें दो पेरेंट की जरूरत होती थी, जिससे हम पॉलिनेशन कराने के बाद जो है वो डेवलप होता था। ठीक है, इसमें क्या है, एक सिंगल पेरेंट से ही एक पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है, उसमें कोई पॉलिनेशन, कोई क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती। देन ये जो प्लांट की ग्रोथ है वो फास्टर होती है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन से प्लांट की जो ग्रोथ होती है फास्ट होती है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल प्रोपोगेशन। ठीक है, दिस हेल्प इन रैपिड जनरेशन ऑफ क्रॉप which in turns balance the loss। Then disadvantages, diversity lost in asexual propagation which is main reason behind occurrence of disease in future plant species।
as many crops are produced with this process will lead to overcrowding, lack of nutrients। यानी कि इससे क्या होता है कि और एक सेक्टर हम वो कराते ग्रो कराते हैं तो क्या हुआ, न्यूट्रिएंट का लेक हो जाता है, ओवरक्राउडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। देन न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप कैन नॉट बी डेवलप, एक न्यू वैरायटी आप डेवलप नहीं कर सकते इस प्रोपोगेशन से, ठीक है, क्योंकि सेम आइडेंटिकल कॉपी होती है। ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, स्पेशल स्क्रीज सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस थ्रू दिस प्रोसेस हैव शॉर्टर, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी कम होती है is compared to sexual process। Species involved in this process are less likely to register pest and disease। जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है, वो कम होती है टू रेजिस्ट पेस्ट एंड डिसीज। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, कई चीपर होता है, इजी होता है, रैपिड मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। मैनी फ्रूट ट्रीज 4 to 5 years to bear the fruit when developed from the seed। अगर हम सेक्सुअल से कराते हैं, सीड से कराते हैं, तो वो 4 से 5 साल लेते हैं फ्रूट आने में, बट जो सेक्सुअल ए सेक्सुअल में क्या करते हैं, 1 साल में ही फ्रूट्स आ जाते हैं। प्लांट्स जैसे रोजियस, क्राइसेंथीमम, ये जो है ये सीड वाइबल नहीं होते। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द ओनली मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, इज द ओनली मेथड टू ऑफ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज इन सच प्लांट। जिसमें क्या होता है, वाइबल सीड्स नहीं होते, उसके लिए सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही मेथड है उसके रिप्रोडक्शन के लिए, स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए या ग्रो कराने के लिए। ऑल द प्लांट डेवलप बाय दीज मेथड विच जनरली सिमिलर टू द पेरेंट कॉपी। और जितने भी प्लांट होते हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन से जो होते डेवलप होते हैं, प्लांट बनते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। तो ये क्या है, कल्टीवेशन एंड मेथड ऑफ द प्रोपोगेशन। So thank you to all।